Assalamu alaikum dear students. In our last class we had a discussion on data transmission. We have seen some data transmission modes like simplex, half duplex and full duplex, and then we had a discussion on the serial and parallel communication. We will continue from the point where we left in our last class. In today's class we will discuss about some terms of data communication like channel, what is baud rate, and what is bandwidth. We will also talk about modems and the modulation techniques like amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. Okay, so firstly discuss the terminology, data communication terminology. Firstly, what is channel? चैनल क्या है? आप ये सुनते रहते होंगे चैनल के बारे में. तो व्हाट इज चैनल? पोर्शन ऑफ द कम्युनिकेशन मीडियम allocated to the sender and receiver for conveying information between them. कम्युनिकेशन मीडियम का कोई पोर्शन है. फ्यू पीपल also term it as a communication medium or mix it with the communication medium, but there is difference between medium and channel. Actually medium is a broader term and channel is a part of the medium. The medium is actually divided into number of separate paths. The communication is often subdivided into a number of separate paths and each path is a channel. All right. Portion of the communication medium which is allocated to the sender and receiver. Communication medium का जो portion sender और receiver के लिए allocate किया जाए, sender के लिए अलग हो सकता है, receiver के लिए अलग, for conveying information between them, उनके दरमियान में information को convey करने के लिए, भेजने के लिए या receive करने के लिए जो पोर्शन उसके लिए रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड चैनल. ओके, सो योर कम्युनिकेशन मीडियम इज डिवाइडेड, इट इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेपरेट पाथ्स एंड दीज पाथ्स कैन बी कॉल्ड चैनल्स. ओके, सो दिस इज बिट अबाउट चैनल एंड द अदर टर्म विच इज यूज इज कॉल्ड baud rate. What is baud rate? This is the rate at which information is transferred in a communication channel. किसी भी communication channel में जिस रेट पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाए एक जगह से दूसरी जगह पे, उस रेट को हम कहते हैं baud rate. According to another definition, and you can see in the second bullet, number of symbols that can be transmitted over a line in a second. एक सेकेंड में किसी लाइन में जितनी नंबर ऑफ सिम्बल्स आप ट्रांसफ़र करते हैं, that is called baud rate. Now what is symbol? There is difference between symbols and bits. Similarly as there is difference between baud rate and bit rate. कुछ लोग समझते हैं कि baud rate और bit rate they are same, but there is technically there is a difference. Baud rate is different than bit rate. As you know, there is a difference between symbols and bits. Symbols can have a one bit, but symbols can be more than one bits. Symbols एक bit से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन bit is a one bit. So अगर एक चैनल जो है वो ऑपरेट कर रहा है सिम्बल्स के ऊपर और इसका सिंबल का साइज से फॉर इंस्टेंस वो 4 बिट्स का है, तो द टोटल बिट रेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4. ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सीरियल पोर्ट, कोई एक सीरियल पोर्ट है, उसके हवाले से अगर हम बात करें, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सीरियल पोर्ट्स में हम बिट्स को सीरियल में ट्रांसमिट करते हैं, पैरेलल के मुकाबले में एक साथ नहीं होती बल्कि एक के बाद दूसरी वन बाय वन सेपरेटली ट्रांसफ़र होती हैं. तो अगर कोई सीरियल पोर्ट है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं और उसकी हम कहें कि उसका baud है 9600, it has a 9600 baud,
तो अगर वो 1 बिट पे ऑपरेट करता है, उसका सिंबल रेट 1 है, तो इट मीन इट इज़ केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग 9600 बिट्स पर सेकेंड। बट अगर उस सिस्टम का सिंबल जो है वो 4 बिट्स की हैं, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। ऑलराइट, so in a serial port, if its baud rate is 9600, we call it 9600 baud for that particular system. So it is, if it is operating, its symbol is equal to 1, then its baud rate will be 9600 bits per second. And if it is operating on if its symbol is equal to 2 bits, then it will be 9600 multiplied by 2. Similarly, if the symbol is equal to 4, then it will be equal to 9600 multiplied by 4. All right, so baud rate is what? The rate at which the information is transferred in a communication channel. हमने चैनल की बात की है। चैनल वो मीडियम का वो पोर्शन है जो यूज़ होता है इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने के लिए। अब उस चैनल के अंदर जिस रेट पे इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड baud rate, and it is measured in bits per second. उसका जो मेजरमेंट जो उसकी की जाती है वो पर सेकंड में की जाती है कि एक सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसफ़र हुई। अगर कोई सिस्टम अगर 9600 बिट्स ट्रांसफ़र कर रहा है एक सेकंड के अंदर, तो उसका बिट रेट हो जाएगा 9600 बिट्स BPS, बिट्स पर सेकंड। ओके, then we talk about bandwidth. According to the definition, bandwidth is the frequency range of a channel. किसी भी चैनल की रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। चैनल की हम बात कर चुके हुए हैं। फिर हमने बात की है बाउड रेट की, कि जिस रेट पे डेटा को सेंड या रिसीव किया जाता है। अब बैंडविड्थ इज व्हाट? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ चैनल, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ चैनल, and it is measured in hertz. You know hertz, measured in hertz. Hertz is what? Cycles per second. hertz क्या होते हैं? Cycles per second. एक सेकंड में कितने cycles ट्रेवल कर रहे हैं, तो it is measured in hertz. Bandwidth is measured in hertz. According to another definition, measured as the difference between the highest and lowest frequencies that the channel supports. अब वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसकी हमने बात की है जो फर्स्ट बुलेट में, कि बैंडविड्थ इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ चैनल, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज। आपकी जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है किसी भी चैनल की, जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसका दरमियान में जो डिफरेंस आएगा, दैट इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। वो डिफरेंस किस तरह निकालेंगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में से आप लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस कर लें, तो डिफरेंस जो आ जाएगा दैट विल बी कॉल्ड बैंडविड्थ। फॉर एग्जांपल, इन अ टिपिकल वॉइस चैनल, अगर कोई वॉइस चैनल है विच कैन कैरी साउंड सिग्नल्स, इट टिपिकली ऑपरेट्स बिटवीन 300 to 3000 हर्ट्स। वो 300 से 3000 हर्ट्स के दरमियान में ऑपरेट कर रहा होता है। तो उसकी बैंडविड्थ क्या होगी? हाईएस्ट अब इसमें यहाँ पर क्या है 3000 और लोवेस्ट क्या है 300, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 3000 और 300 का? जस्ट सब्ट्रैक्ट 300 फ्रॉम 3000, सो इट इज़ इक्वल टू 2700। सो यहाँ पर बैंडविड्थ क्या हो जाएगी 2700। उस वॉइस चैनल की बैंडविड्थ क्या कहलाएगी, कितनी हो जाएगी? 2700। ओके, so and the maximum transmission speed is dependent upon the available bandwidth. अब ट्रांसमिशन स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है किसी भी चैनल की? जितनी उसको बैंडविड्थ अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी उसमें 2700 उसकी थी बैंडविड्थ, तो अब उसमें मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? डेटा कितना ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है? 2700। उससे ज़्यादा कर सकता है? नहीं, उससे कम कर सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2700। एंड लास्टली, द लार्जर द बैंडविड्थ द हायर द ट्रांसमिशन स्पीड। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा स्पीड ट्रांसमिशन की हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। ओके, देन वी कम टू मॉडेम्स। कम्युनिकेशन में
स्पेशली एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन में, एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कम्युनिकेशन में द वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस इज मॉडेम. Modem basically is the combination of two words, modulators and demodulators. Let's see what is modem. According to one definition, modems are devices which allow digital data signals to be transmitted across an analog link. modems वो डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से आप अलो करते हैं डिजिटल डेटा सिग्नल्स को कि वो ट्रांसमिट किए जा सकें किस लिंक पे, जो एनालॉग लिंक है. इसका मतलब है डिजिटल डेटा को आप कन्वर्ट करेंगे, डिजिटल डेटा वुड बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म सो दैट इट कैन ट्रैवल ऑन एन एनालॉग लिंक. किसी एनालॉग लिंक के ऊपर वो ट्रैवल कर सके, किसी एनालॉग मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल कर सके, आइदर वायर्ड और वायरलेस मीडियम, वायर्ड और वायरलेस लिंक. उसके ऊपर वो ट्रैवल तब कर सकेगा जब उसको आप कन्वर्ट करेंगे डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में. I'm sorry. मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर. जिस तरह हमने बात की है, ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम होता है इसमें. इसको ये मॉड्यूलेटर का काम भी करता है और डीमॉड्यूलेटर का काम भी करता है. अ मॉडेम चेंजेस द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग फ्रीक्वेंसी. मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है एंड सेंड्स दिस टोन अक्रॉस द एनालॉग लिंक. वंस वो एनालॉग में कन्वर्ट हो गया, देन इट कैन बी सेंड ऑन एन एनालॉग लिंक. डिजिटल से आपने एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, अब आप उसको एनालॉग लिंक के ऊपर सेंड कर सकते हैं. इट कैन बी सेंड ऑन एन एनालॉग लिंक, इट कैन बी ट्रांसमिटेड. ओके. एट द अदर एंड जो दूसरा एंड है वहाँ पर, जो रिसीवर्स एंड है, जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर, एन अदर मॉडेम रिसीव्स द सिग्नल एंड कन्वर्ट्स इट बैक टू डिजिटल. एक और मॉडेम होगा जो उसको सिग्नल को रिसीव करेगा. वो किस फॉर्म में होगा सिग्नल? एनालॉग फॉर्म में. ओके. तो उसको एनालॉग फॉर्म में रिसीव करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू डिजिटल फॉर्म. उसको दोबारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा सो दैट द डिजिटल डिवाइस कैन अंडरस्टैंड इट, लाइक योर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट. ऑलराइट. As you can see in this figure, it might be smaller. Let me zoom its size. I think it's now visible. As you can see in this figure, there is one DTE. What is DTE? This is a term used for digital terminal equipment. Digital terminal equipment is nothing but your computer. It can be your computer system which operates on binary data. Okay, so this is digital terminal equipment. The data is in the form of binary data. यहाँ पर binary data आपके पास है सिस्टम में. As you can see in this figure, कंप्यूटर के बाद जो आपको फर्स्ट कंप्यूटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नज़र आ रहा है, उसके बाद जो आपको सिग्नल नज़र आ रहा है, दैट सिग्नल इज़ बेसिकली डिजिटल सिग्नल और इन द बाइनरी फॉर्मेट. The signal is in the binary format और it is a digital signal. So कंप्यूटर में डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में है, वो उसको सेंड करता है. जब वो सेंड करता है तो आगे उसके आगे, उस सिग्नल के आगे आप जो देख रहे हैं एक रेक्टेंगल जिसमें आपको रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये दिस इज़ अ DCE. दिस इज़ DCE, डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. ये कोई डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है जो कम्युनिकेशन के लिए काम कर रहा है. कम्युनिकेशन के लिए क्या मतलब है कि ये डिजिटल जो सिग्नल इसको रिसीव हो रहा है, जो बाइनरी फॉर्मेट में सिग्नल इसको रिसीव हो रहा है, इसको अब कम्युनिकेट करवाना है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. किसी लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर इसको कम्युनिकेट करवाना है, तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म. इसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर मॉडेम जो है वो सिग्नल को रिसीव करेगा. अब ये डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज़ बेसिकली योर मॉडेम हेयर. यहाँ पर ये आपका मॉडेम है जो डिजिटल सिग्नल को रिसीव करेगा बाइनरी फॉर्मेट में, यानी कि इसको वो आगे फिर भेजने से पहले कन्वर्ट करेगा किसमें? एनालॉग फॉर्मेट में. ऑलराइट. तो इन दिस डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या इस मॉडेम में आपका जो बाइनरी सिग्नल है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म. डिजिटल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म. एज यू कैन सी, वो उसके आगे आपको जो सिग्नल नज़र आ रहा है, दैट इज़ एन एनालॉग सिग्नल.
ओके, ये आपको नज़र आ रही है, वेव नज़र आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट डिजिटल, दिस इज़ एनालॉग फॉर्म में आपको नज़र आ रही है, नीचे लिखा भी हुआ है एनालॉग। अच्छा, ये एक कोई डिस्टेंस है जिसके ऊपर ये सिग्नल ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करने के बाद जब वो रिसीवर के पास जाएगा, जब डेस्टिनेशन पे जाएगा, तो वहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं एक DCE आपको नज़र आ रहा है। ये DCE अगेन एक रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है ऑन द राइट हैंड साइड विद हैविंग 3 डॉट्स, 3 रेड डॉट्स। ये आपका DCE या आपका मॉडेम है, जहाँ इन दिस केस दिस इज़ अ मॉडेम। ओके, दिस डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और DCE इज़ बेसिकली योर मॉडेम ऑन द डेस्टिनेशन। सो इस डेस्टिनेशन पे ये अब सिग्नल कौन सा रिसीव करेगा? ऑब्वियसली ये रिसीव करेगा एनालॉग सिग्नल जो ट्रैवल करता हुआ आ रहा है। अब ये एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया जाएगा दोबारा बाइनरी फॉर्मेट में। दिस एनालॉग सिग्नल विल बी कन्वर्टेड अगेन इनटू बाइनरी फॉर्मेट और इन डिजिटल फॉर्मेट। व्हाई इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट? सो दैट द कंप्यूटर ऑन द डेस्टिनेशन कैन अंडरस्टैंड इट। डेस्टिनेशन पे भी ऑब्वियसली कोई कंप्यूटर, कोई DTE डिजिटल टर्मिनल इक्विपमेंट विच इज़ द कंप्यूटर विच कैन अंडरस्टैंड दिस सिग्नल। सो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा। एक कंप्यूटर जो है उसके ऊपर जो मॉडेम लगा होगा वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और फिर ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन लिंक के ऊपर भेज दिया जाएगा एनालॉग फॉर्म में, और डेस्टिनेशन में दोबारा उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा, सो दैट कि डेस्टिनेशन पे जो कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। ऑल राइट, सो दिस इज बिट अबाउट मॉडेम्स। नाउ देर आर सम मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। मॉड्यूलेशन की क्यों जाती है और उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, हम देखते हैं। Now modulation techniques are basically methods which are used to encode digital information in an analog world. मॉड्यूलेशन टेक्निक्स वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं इन एन एनालॉग वर्ल्ड। एनकोड मतलब उसकी कोडिंग करते हैं, आप उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्मेट से एनालॉग फॉर्मेट में, एनालॉग वर्ल्ड के लिए। बिकॉज यू नो, अगर आपने किसी भी लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर आपने सिग्नल्स को भेजना है, फॉर एग्जांपल थ्रू आपने टेलीफोन लाइंस के भेजना है या थ्रू वायरलेस लिंक आपने भेजना है, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में जो कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? देयर आर बेसिकली 3 modulation techniques: AM, that is amplitude modulation; FM, that is frequency modulation; and PM, that is phase modulation. ये 3 किस्म की टेक्निक्स हैं, AM, FM and PM। और मॉड्यूलेशन है क्या? मॉड्यूलेशन है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ताकि उसको किसी लिंक के ऊपर, एनालॉग लिंक के ऊपर ट्रांसमिट किया जा सके, तो उसके लिए आपको मॉड्यूलेशन करनी पड़ती है। ऑल 3 मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एम्प्लॉय ऑन अ कैरियर सिग्नल। ये तमाम जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं इसको किसी कैरियर सिग्नल के ऊपर एम्प्लॉय किया जाता है। व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट डज इट मीन बाय कैरियर सिग्नल? लेट्स सी। अ कैरियर सिग्नल इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी दैट इज यूज्ड टू कैरी द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज व्हाट? डेटा। कैरियर सिग्नल एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है का कोई सिग्नल है जो यूज़ किया जाता है कैरी करने के लिए डेटा को, एज इट्स नेम सजेस्ट, कैरियर। कैरियर मीन्स द सिग्नल विच इज़ यूज टू कैरी द डेटा, जो डेटा को कैरी करके लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। कैरियर का काम क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना डेटा को। ओके, तो ये कैरियर के ऊपर आप उसकी मॉड्यूलेशन करेंगे जो आपका इनपुट सिग्नल होगा, डिजिटल सिग्नल जो होगा, जिसको आप इंटेलिजेंस भी कह रहे हैं, जिसको आप डेटा का भी नाम दे रहे हैं। ऑल दीज आर सेम। ओके, फॉर डिजिटल डेटा द इंटेलिजेंस इज आइदर अ 0 और 1। अगर आपका डेटा कोई डिजिटल डेटा है तो इंटेलिजेंस या वो डेटा किस फॉर्म में होगा? आइदर 1 या 0 में होगा। व्हेन वी मॉड्यूलेट द कैरियर, जब आप कैरियर को मॉड्यूलेट करेंगे, वी आर चेंजिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू करिस्पॉन्ड टू आइदर अ 1 और 0। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको, उस सिग्नल को हम इस तरह से
चेंज करेंगे कि आइदर वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हो या 0 को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है हमने उसकी कि उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं हम वंस में या ज़ीरोज़ में। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये सारे काम करते हैं, AM, FM एंड PM। वी विल सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सो फर्स्टली लेट्स सी व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और AM। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या AM क्या है। कि इसको थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज करता हूँ। So in amplitude modulation, it modifies the amplitude of the carrier to represent ones or zeros. As its name suggests कि एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई किया जाता है। किसी भी सिग्नल, कैरियर सिग्नल जो है आपका, उसके एम्पलीट्यूड को आप मॉडिफाई करते हैं ताकि आप ज़ीरोज़ और वंस को रिप्रेजेंट करवा सकें। एज यू कैन सी हेयर इन दिस फिगर, अगर आप इस फिगर में देखें तो आपको ये नज़र आ रही है नीचे फिगर, लेट मी शो यू। ये जो आपको 3 फिगर्स नज़र आ रहे हैं, इसमें जो टॉप पे फिगर है, इट शोज़ यू द कैरियर। इसमें आप देखें कि एम्पलीट्यूड भी एक जैसा है और फ्रीक्वेंसी भी एक जितनी है। जब मैं कहता हूँ एम्पलीट्यूड तो ये आपको शो करता है हाइट इसकी सिग्नल की, और जब मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी तो इट मीन्स नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने साइकिल्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। द मोर विल बी द साइकिल्स, द हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी। जितने ज़्यादा उसके साइकिल्स ज़्यादा होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जस्ट टू रिमाइंड यू, हमने ये कहीं पर क्लास में भी डिस्कस किया था। सो इसी तरह से एम्पलीट्यूड शोज़ यू द हाइट ऑफ द सिग्नल। जितना इसकी हाइट ज़्यादा होगी इसका मतलब इतना उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि एम्पलीट्यूड सिग्नल का वेरी करवाते हैं। एज इट्स नेम सजेस्ट, नाम से हमें पता चल रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम एम्पलीट्यूड वेरी करवाते हैं। तो इसी तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, हम फ्रीक्वेंसी वेरी करवाएंगे। उसको हम बाद में देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किस तरह से हम काम करती है। A 1 is represented by the presence of the carrier for a predefined period of 3 cycles of carrier। 1 किस तरह से रिप्रेजेंट करवाया जाता है कि अगर 3 साइकिल्स कैरियर के, अगर 3 साइकिल्स कैरियर के कंटिन्यू उसमें आपको फुल एम्पलीट्यूड दिखाया जा रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर 1 है। उसको आप एनकोडिंग जो समझते हैं, उसका कोड क्या समझते हैं आप कि ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एब्सेंस और नो कैरियर इंडिकेट्स अ 0। अगर कोई एब्सेंस आ जाए, एम्पलीट्यूड वहाँ पर कुछ भी ना हो, तो उसको आप 0 से इंडिकेट करते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर इन मिडल, जो मिडल में सेंटर में जो फिगर है दूसरी रो में, उसमें आप देखें जो फर्स्ट रो में हमने देखी है वो दैट वाज कैरियर। इन द सेकेंड रो वी कैन सी द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर। अब उस कैरियर को आपने मॉड्यूलेट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एम्पलीट्यूड। अगर आप देखें तो फर्स्ट 3 साइकिल्स जो इसके हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 को, और उससे आगे आप देखें तो एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। ये दिस इज एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, या 0 एम्पलीट्यूड है यहाँ पर। तो ये 0 एम्पलीट्यूड बेसिकली इंडिकेट कर रहा है 0 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड आपको नज़र आ रहा है 3 साइकिल में कंटिन्यू, तो ये 3 साइकिल जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी 1 को, और फिर उसके बाद कंटिन्यू जहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है या एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 है वहाँ पर, तो वो इंडिकेट कर रहा है 0 को। अगर आप इसको कंपेयर करवाएं, सेकंड लाइन में जो फिगर आ रही है उसको अगर आप कंपेयर करवाएं थर्ड रो वाली फिगर के साथ, तो थर्ड रो में आपको डिजिटल सिग्नल नज़र आ रहा है। ये वो बेसिकली इनपुट सिग्नल है जिसको आपने भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, और उसी के रिस्पेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है कैरियर को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, कैरियर को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आप अगर थर्ड रो में जो फिगर है उसके साथ अगर कंपेयर करें सेकंड रो को, तो आप देखेंगे कि थर्ड रो में आप देखें पहले 1 एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 1 को,
तो जितनी उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के जितनी देर के लिए वो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, उतनी देर के लिए आपने कैरियर सिग्नल के तमाम जो साइकिल्स हैं उसको शो करवाना है। लेकिन जहाँ पर वो 0 हो रहा है सिग्नल, तो वहाँ पर आपने उसको एम्पलीट्यूड को 0 शो करना है। सो दिस इज़ हाउ डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड। This is how digital data can be modulated with the help of amplitude modulation. When there are ones, it can be shown by the three continuous cycles having the original carrier, and where there is 0, there is basically absence of amplitude. वहाँ पर आप कोई amplitude शो नहीं करवा रहे। All right, I hope the idea is clear. जहाँ पर, I repeat, it's very important, जहाँ पर आपको सिग्नल मिल रहा है, डिजिटल सिग्नल 1 मिल रहा है, वहाँ पर आपने कंटिन्यू थ्री साइकिल्स जो हैं उसको ओरिजिनल कैरियर शो करवाना है, और जहाँ पर आपको 0 रिप्रेजेंट करवाना है, वहाँ पर आप बेसिकली आप कैरियर जो है उसको इंडिकेट, कैरियर का एम्पलीट्यूड 0 रख देते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट